নমস্কার, আমরা হাওড়া ডিস্ট্রিক্ট মাউন্টেনিয়ার্স অ্যান্ড ট্রেকার্স অ্যাসোসিয়েশনে এই যে 34তম শৈলারোহণ প্রশিক্ষণ শিবির শুরু করতে চলেছে। আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন যে ট্রেনটা অনেক লেট করেছে, আর এত বড় টিম সব কিছু অ্যারেঞ্জমেন্ট সত্ত্বেও আমরা প্রায় 2 ঘন্টা থেকে 2.5 ঘন্টার মতো পেছিয়ে আছি। কিন্তু এই অবস্থায় আমরা শুরু করে দিতে চাই, কারণ আমরা দেখেছেন যে কি অবস্থা ট্রেনের, সেখানেও অ্যাকোমোডেট করবার জন্যে আমরা 14 জনকে আজ সকালবেলায় রূপসী বাংলাতে পাঠাচ্ছি। তারা এসে জয়েন করবে 14 জন, এবং এই 11:10 ট্রেন এসে যাবে, ওরা এসে ফিল্ডেতে জয়েন করবে, কোনো অসুবিধে নেই। তো আমরা বেশি দেরি করতে চাই না, আমরা সকলেরই সহযোগিতা চাই। যেহেতু আমাদের এই কোর্স শুরু করতে একটু দেরি হচ্ছে, সেই জন্য সমস্ত টাইমগুলো একটু করে পেছিয়ে যাবে, এইগুলোকে আপনাদের স্বীকার করে নিতে হবে। কালকে অনেকেরই ঘুম হয়নি, হয়নি, একটু অসুবিধে প্রথম দিন, তার উপর অন্যান্য সংক্ষিপ্ত, তার মধ্যে যতটুকু জিনিস শিখে নেওয়া যায় আমাদের স্টাফের কাছ থেকে সেটা করতে হবে। এবং দেখা গেছে যে কয়েকজন ট্রেনই টার্ন আপ করতে পারেনি, আবার কয়েকজন ট্রেনি হিসেবে তারা এসছে, আমরা অ্যাকসেপ্ট করেছি যে এত যখন আকাঙ্ক্ষা, আমরা নিশ্চয়ই এদের সঙ্গে এদের অ্যাকোমোডেট করব। আর আমাদের খুব সুখবর যে আমাদের বাংলাদেশের 2 ছোট ভাই আদব ইয়াসির অ্যান্ড আসারুল হক, এই 2 জন জয়েন করেছে। হ্যাঁ, এই জন্য আমরা খুব আনন্দিত। যাই হোক, আপনারা নিশ্চিতভাবেই জানেন এই ক্যাম্প পরিচালনা করার জন্যে অ্যাজ সেক্রেটারি আমার আর কোনো ভূমিকা নেই। এই ক্যাম্পে একজন ক্যাম্প কমান্ড্যান্ট নির্বাচিত হন, তার অধীনে কিছুটা প্রচণ্ড নিয়ম শৃঙ্খলাটা এখানে বিরাট ব্যাপার, সেইটা মেনে চলতে হয়। এবং এরপর তারই অধীনে ফ্ল্যাগ হোস্টিং হওয়ার পর ক্যাম্পটা শুরু হবে, পরবর্তী সময় তিনি সব বলে দেবেন। তাই আমি ক্যাম্প কমান্ড্যান্ট হিসেবে শ্রী দেবব্রত ভট্টাচার্য সিনিয়র আমাদের, আমি তার নাম প্রস্তাব করছি। আমি প্রস্তাব সমর্থন করছি। এখানে কিরণ দা, সাবধান। বিশ্রাম। I'm grateful to the all members of SDMTA and present training observation guests যে আমাকে এই গুরু দায়িত্বটা দেওয়া হয়েছে, এবং আমি এই গুরু দায়িত্বটা গত কয়েক বছর ধরে পালন করছি। প্রথমেই সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি 34তম শৈলারোহণ শিক্ষণ শিবিরে, এবং সেই সঙ্গে এটাও জানাচ্ছি যে আপনাদের সকলের সহযোগিতা আমি চাইছি।
এবং এই সহযোগিতার সঙ্গে আমি আবার আপনাদের বলি, আপনারা সকলে ট্রেনি, অবজারভার, গেস্ট, ইনস্ট্রাক্টর, অফিসিয়ালস সকলে এই ক্যাম্পটাকে এনজয় করুন। এটাকে কোনো মানে হার্ডশিপ হিসেবে নেবেন না, এটাকে এনজয় করুন, যে যতদূর সম্ভব এনজয় করুন। এবং সেই প্রসঙ্গে আমি বলে দিতে চাই যে আমাদের এবারের ক্যাম্পে একজন এভারেস্টার, আমাদের মেম্বার এভারেস্টার শ্রী মলয় মুখার্জি উপস্থিত হয়েছেন। এবং মলয় মুখার্জি এইরকমই একটা ক্যাম্প থেকে পর্বতারোহী তৈরি হয়েছে, এবং আরেকজন পর্বতারোহী সে এইরকম ক্যাম্প থেকে সে আবার এভারেস্টে যাচ্ছেন 2017-তে। সেই সঙ্গে আমরা এও জানি, যদিও আমাদের ফার্স্ট সিভিলিয়ান 8000 মিটার 5টা টাইম করে দিন দেবাশিস বিশ্বাস এসে পৌঁছাননি, উনি আসবেন। কিন্তু আরেকটা ভালো খবর, এবং আমরা প্রতি বছর তাকে পাই, সেটা হচ্ছে 7 টাইম এভারেস্টার পেম্বাজি, পেম্বা শেরপা 7বার এভারেস্টে করেছেন। আরও কবার করবেন উনি নিজেও জানেন না। তো আমরা খুব ভাগ্যবান যে তাকে পেয়েছি আমরা। তো সেই সঙ্গে আমি আপনাদের বলি যে আপনারা যারা ট্রেনিং, তারা একটু মন দিয়ে থাকবেন, আনন্দ করতে করতে ট্রেনিংটা নেবেন। আমাদের মলয় আছে, পেম্বাজি আছে, আমাদের মানে বাঞ্চ অফ গুড ইনস্ট্রাক্টার্স, প্রচুর ইনস্ট্রাক্টার্স রয়েছেন যারা গত 20 বছর ধরে এই কাজটা করে আসছে। হাওড়া ডিস্ট্রিক্ট মাউন্টেন টেকার্স অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে 34তম রক কোর্স করতে এসেছি তিলাবনীতে। আমরা খুব ভাগ্যবান, প্রেমবা ভাইকে পেয়েছি, ভল্লু ভাইকে পেয়েছি। আমাদের আজকের ক্যাম্প কমান্ডেন্ট হাওড়া ডিস্ট্রিক্ট মাউন্টেন অ্যাসোসিয়েশনের যে রক কোর্স হচ্ছে, সেই দেবুদাকে পেয়েছি। তা দেবুদার মাধ্যমে আমরা একটু প্রেম ভাইয়ের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা আমরা একটু শেয়ার করে নিই। দেবুদাকে একটু অনুরোধ করছি, প্রেম ভাইকে আপনি একটু নিজেদের মতন করে একটু আলোচনার মধ্যে দিয়ে আমাদেরকে একটু সমৃদ্ধ করুন। पेम्बा जी हम लोग का क्लब से जब पहले हम लोग उसके कामेट एक्सपीडिशन में देखा है 2007 में, वो टाइम से पेम्बा जी ऑलरेडी 3 टाइम्स एवरेस्ट क्लाइम कर लिया। तो पेम्बा जी को साथ हमारा जो परिचय है 2007 से, तो आज 2016 9-10 साल हो गया। तो पेम्बा जी को हम एक बात पहले पूछेगा, पेम्बा जी आप बचपन से आप ऐसा प्रोफेशन में कैसे आप बचपन कैसा रहा आपको, उधर में कहाँ आप थे, अभी कहाँ है, उसका बाद में आपको जो प्रोफेशन में आया उसको थोड़ा बात बोलिए। उसका बाद में आपको हम पूछेगा आप जितना जितना सारे एक्सपीडिशन किया, वो सब एक्सपीडिशन का थोड़ा आपको एक्सपीरियंस और थोड़ा कठिनाई और हैज़र्ड्स, ये सब के लिए आपको हम जानते रहेगा। तो पेम्बा जी आपको थोड़ा बचपन से आपको थोड़ा बोलिए। एक्चुअली मैं बचपन में तो मेरा पहले तो एक्चुअली मैं ट्रेकिंग करता था। ट्रेकिंग का पहले मैं किया, एक्चुअली पहले फर्स्ट में हम पोर्टर कर रहा था। उसके बाद जो ट्रेकिंग में भी शेरपा करके होता है कि जो अंग्रेज़ के साथ चलना, ऐसे खाली चलना है, उसको ग्रुप का देखभाल करना है, तो उसको शेरपा बोलता था। तो पहले मैं पोर्टर में गया, उसके बाद शेरपा करके गया। उसके बाद में ये 1994-95 में दार्जिलिंग में जो माउंटेन इंस्टीट्यूट जो HMI का बेस कैम्प है, तो चौंगरेखांग, तो वहाँ पर मैं चौकीदार भी रहा मैं 94-95। तो उसके बाद मैं 96 से माउंटेनिंग शुरू किया। तो क्योंकि मेरा बड़ा भाई पासंग उधर शेरपा उन लोग माउंटेनिंग पहले से माउंटेनिंग में था, तो उसी 96 से मैं ये वेस्ट बंगाल जो कलकत्ता का एक अतुनु चटर्जी बोल के पुराना माउंटेन मेरा पासंग भैया का एक दोस्त था। तो उसने हम लोग को कांटेक्ट करके मैं फर्स्ट वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट मतलब वेस्ट बंगाल से एक गंगोत्री 3 में गया था मैं। तो उसके बाद 96 में गया, 97, 98 में मैं नेपाल में कोई छोटा मोटा पिक किया, मेरा पिक, आइलैंड पिक, ये वगैरह। तो 99 से जो कलकत्ता का ये कृष्णनगर माउंटेनिंग क्लब में तो बसंत
सर का साथ, देवाशीष का साथ हम लोग ये 99 में मैं उसमें गया, ये क्या बोलते हैं बिरगुबान। तो 99 में गया। उसके बाद 2000 में हम लोग, मेरा फर्स्ट एवरेस्ट एक्सपीडिशन 2000 में हुआ। तो 2000 में जो हमारा तेंजिंग नोर्गे का जो लड़का था जमलिंग तेंजिंग, तो जमलिंग तेंजिंग ने मेरा फर्स्ट एवरेस्ट में चांस दिया कि उसका एक अमेरिकन टीम था, ये क्लाइंबिंग एंड क्लीनिंग दोनों, जो एवरेस्ट में जितना बड़ा क्लीनिंग हुआ था वो 2000 में शायद 600 चंचुन बदल हम लोग खाली ऑक्सीजन सोतकोल से बीसीएम लेके आया, वो करमुंडू लेके आया। बीसीएम तक तो हम लोग लेके आए, वो जो उधर पोटाट लेके तो जमा काटा गया। क्योंकि उस टाइम तक सोतकोल में जाते हम लोग जो कैंप एवरेस्ट को जो सोतकोल है कैंप हो, तो वहाँ पर जाते वक्त पूरा कचरा था वहाँ पर, बदल वगैरह। हम लोग जाते ही ढूंढना नहीं पड़ता था कि जो 8000 मीटर में पहुँच गया, पानी पियो, इधर से आग से बदल लेकर बैग में डालना, इधर से कोई ढूंढने का ज़रूर नहीं था। करापुन जो हम लोग करापुन लगा के होता है, उस टाइम में संभाल के वो करापुन जो पैर रखना पड़ता था कि इतना कचरा था। तो उस टाइम में हम लोग सारा कचरा, बोतल वगैरह, ऑक्सीजन बोतल, रबिश वगैरह सब हम लोग काटा करके सब नीचे लेके आया। अभी उसके बाद में भी बहुत ने क्लीनिंग किया। अभी सोतकोल में जाते वक्त ऐसे खाली ऑक्सीजन एक भी नहीं देगा, खाली ऑक्सीजन ढूंढना पड़ता है अभी। तो उस टाइम में हम लोग, मेरा फर्स्ट एवरेस्ट था क्लीनिंग क्लाइंबिंग, तो उसे फर्स्ट एक्सपीडिशन में मेरा एवरेस्ट सक्सेस हो गया 2000 में। तो उसके बाद 2001 में भी मैं एक हमारे इंडिया का एक टीम लेकर गया था। एक मेरा मेंबर था ये दिल्ली का, ये कैप्टन कोहली का लड़का था, एक कैप्टन कोहली का लड़का हरीश कोहली करके, वो एक्चुअली इटाली में बैठता है, वो एवरेस्ट में आया। उसको टीम लेकर हम 2001 में एवरेस्ट क्लाइंबिंग करने में ले गया, लेकिन उसमें नहीं हुआ क्योंकि कैंप 3 तक गया। वो उसका एक्चुअली कैसे क्लाइंबिंग नहीं हुआ। तो एक्चुअली माउंटेन में 2 बूट यूज़ करते हैं आदमी, एक कॉपलास, एक वन स्पोर्ट। तो उसका न्यू वन स्पोर्ट लेके आया था, एक कॉपलास। वो उसने क्या किया, तो पहले उसने वन स्पोर्ट वो नहीं किया, पहना नहीं उन लोग ने, सिर्फ सामिर के लिए रखा। तो उसने कॉपलास पहन के कैम्प 1, कैम्प 2 किया, कैम्प 3 किया, फिर बीसीएम में आगे रेस किया। तो जब तक सामिर ने अटेम्प्ट किया तो डायरेक्ट उसने नया वन स्पोर्ट पहना, तो उसका कंफर्टेबल नहीं हुआ, वो पैर दर्द हो गया, कुछ हो गया, उसके बाद जाना ही पाया, हम लोग वापस आए। वो सक्सेस नहीं हुआ। सक्सेस नहीं हुआ। तो उसके बाद हम लोग फिर 2002 में भी मैं एवरेस्ट में गया। उसके बाद तो एवरेस्ट में 2002 में एक कोरियन, ये जापान में जो वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें हम लोग एवरेस्ट का सामिर में हम लोग एक फुटबॉल पहुँचाने के लिए गया। कोरिया से ऊपर को ले गया था, कोरिया से ये मिश्रा ओम करके, क्योंकि 8000 जो भी 8000 पीक पूरा कर चुका था, वो आया था, हम लोग उसका साथ किया। उसके बाद हम लोग सोतकोल तक लोड पिक किया, सब किया। तो बाद में क्या कि हम लोग समिट नहीं हो, क्योंकि हम लोग समिट में नहीं गया। वो कोरियन लोग बोला कि हम खुद जाके आएगा, क्योंकि हम लोग शेरपा लोग क्लाइंबिंग गाइड लोग जाएगा, उन लोग का पैसा ज़्यादा देना पड़ता है, क्योंकि आग से यूज़ करना पड़ता है, समिट को बोनस देना पड़ता है। इसीलिए उन लोग ने वो पैसा बचाने का चक्कर में उन लोग खुद जाके समिट करके आया। हम लोग क्लाइंबिंग गाइड लोग को समिट का समझो चांस नहीं दिया। तो ऐसे करके हम लोग 2003 में मैं तिब्बत से गया, एवरेस्ट नॉर्थ साइड से गया। तो 2003 में हम लोग का रोमानिया टीम था एवरेस्ट में, तो उसके साथ हम लोग शामिल हो गए नॉर्थ साइड से। तो 2004 में मैं एक्चुअली चाइना से एक K2 एक्विजिशन चाइना रूट से भी होता है, पाकिस्तान से भी होता है। तो मेन सबसे इजी तो पाकिस्तान से नॉर्मल रूट, मतलब पाकिस्तान से 2-3 रूट है नॉर्मल रूट पे, टेक्निकल रूट पे। तो हम लोग चाइना रूट से किया था कोरिया का ही टीम लेकर। तो हम लोग गाइड बन के गया, उसमें हम लोग का कैम्प 3 तक गया। कैम्प 3 में हम लोग को
3 कोरियन का डेट हो गया। मतलब हम लोग कैंप 3 तक रूट ओपन करके वहाँ पर कैंप लगा के रखा था। हम लोग इस कैंप में ABC में हम लोग रेस में आया था। तो उधर 2 शेरपा था, 4 कोरियन था। तो ऊपर से एप्लास आके दब किया। 2 शेरपा 1 कोरियन का कुछ नहीं हुआ, 3 कोरियन का डेट हो गया। तो डेट होने के बाद हम लोग एक्सपीडिशन कैंसिल करके उसका डेड बॉडी का दबा के रख दिया, केयरबस में लेके दबा के रख दिया। तो हम लोग एक्सपीडिशन कैंसिल करके वापस आ गए। तो ऐसे करके हम लोग 2004 में गया। 2005 में फिर मैं एवरेस्ट में गया एक कोरियन का डेड बॉडी रेस्क्यू करने के लिए नॉर्थ से, क्योंकि एक कोरियन क्या 2004 में एवरेस्ट में जाके उसने क्या गॉगल्स खोल के उसका जो भी स्पॉन्सर था, स्पॉन्सर का फ्लैग वगैरह बहुत लेके आता उसका। तो उसने एवरेस्ट का समिट किया। एवरेस्ट का समिट में उसने 15-20 मिनट वो गॉगल्स खोल के खाली आँख उसने फ्लैग झंडा लिया, फ़ोटो खींचा। तो उसका वहीं स्नो बेलिंग हो गया उसका। तो उसके बाद वो पूरा अंधा हो गया। उसके बाद वो आ नहीं पाया, थोड़े से आ गया, समिट का थोड़ा नीचे आ गया, वहाँ से आ नहीं पाया। और वहाँ पर 3-4 दिन जिंदा था। तो उसके बाद वो वहीं मर गया था। तो इसीलिए उसका डेथ हो गया था। फिर 2005 में हम लोग उसका डेड बॉडी रेस्क्यू के लिए गया 2005 में। तो फिर उसके बाद उसका 1 साल तक वहाँ था। हाँ वहीं था। तो उसके बाद उसका डेड बॉडी, तो क्योंकि एक्चुअली के आदमी मरने के बाद तो पूरा आइस बन जाता है। आइस बनने के बाद तो एक्चुअली सोचो जो आइस होता है तो इतना वाइट होता है ना। तो वो आदमी तो एक आदमी तो इतना बड़ा आइस बन गया। तो उसका तो लेके आने का बहुत कोई वो नहीं था, क्योंकि एक्चुअली तिब्बत से नॉर्थ साइड से जो एक पेशेंट है लास्ट टाइम से ऊपर तो पूरा रोकी है। तो रोक में तो लेके आने का बहुत मुश्किल है। तो इसलिए हम लोग सेकेंड स्ट्रीम में लेकर एक रोकी का वो ढूंढना, तो उसमें रख के उसका पूरा दबा के उसका डेड बॉडी दबा के रख दिया। तो हम लोग आ गए। तो 2006 में तो मैं एक कोरियन टीम लेकर मैं छोयो एक्सपीडिशन गया। तो छोयो सक्सेस हो गया। तो 2007 में मैं फिर नॉर्थ से एक मेरा ब्रिटिश टीम लेकर मैं एवरेस्ट में गया। 2008 में मैं नॉर्वे का 2 लड़का लेकर साउथ से एवरेस्ट में गया। 2009 में फिर मैंने नॉर्वे का 1 लड़की लेकर नॉर्थ से एवरेस्ट में गया, वो सक्सेस हो गया। तो उसके बाद 2010 से हमारा जो बंगाल का फर्स्ट बसंत सिंह रॉय देवाशीष विश्वास हम एवरेस्ट में लेके गया था। तो उसके बाद 2010 में हमारा बंगाल का फर्स्ट एवरेस्ट का मेरा फर्स्ट एवरेस्ट का बंगाल का फर्स्ट क्लाइंट था बसंत सिंह रॉय देवाशीष विश्वास, उन दोनों को समिट हो गया। उसके बाद मेरा एवरेस्ट ही जाने का चांस बहुत कम हो गया, क्योंकि बसंत सर देवाशीष सर वो लोग 2011 में कंचनजंगा गया, 12 में अन्नपूर्णा 1 गया, 13 में धौलागिरी गया था। धौलागिरी में इतना बहुत हम लोग का वो हो गया, क्योंकि हम लोग समिट में शाम का शायद रात का 9 बजे निकला। तो आज पूरा रात चला गया, कल पूरा दिन चला गया, कल पूरा रात मतलब कल पूरा दिन का शाम का पूरा ऑक्सीजन ख़त्म हो गया। हम लोग समिट भी नहीं हुआ। समिट को थोड़ा सामने से हमारा टीम था, एक जापानीज एक महिला था, उसके बाद स्पेनिश टीम था। तो वो स्पेनिश समिट का 150 मीटर का सामने से एक स्पेनिश का जो शेरपा एक स्पेनिश का वो हो गया, एक्सीडेंट हो गया। तो उसका स्पेनिश का पेट टूट गया। तो टाइम भी बहुत हो चुका था। तो हमने उसका बसंत सर और देवाशीष दा का वहाँ से ही वापस लेके आया, क्योंकि बसंत सर देवाशीष दा थोड़ा मना ही कर रहा था ना, अभी समिट तो सामने है तो जाने से क्या होगा, लेकिन हमने मना ही किया। तो हम लोग एक्चुअली उस टाइम में उस समिट में जाता तो अभी हम लोग तीनों नहीं होता यहाँ पर। ये बात सही है।
क्योंकि हम तीनों अभी ये दुनिया में नहीं होता, हम वहीं रहता था। तो हम वहाँ से वापस आ गया, तब फिर आते आते वो देवसिता को आँख खराब हो गया। उसको हम एक शेरपा था मेरा पासांग करके दूसरा नेपाल से लेके गया था। वो पासांग पीछे रख के हम आगे गया। वो हमारा साथ सिर्फ 20-30 मीटर रोप था। वो रोप का आगे किया, फिर उसका रोप पकड़ के देवासिता बसंत को आना दिया। फिर उसके बाद फिर वो रोप पास किया, फिर उधर ऐसे कर करके हम लोग को पूरा टाइम चला गया। मौसम भी बहुत ख़राब हो गया था। बाद में शायद शाम का 8-9 बजे ऑक्सीजन ख़त्म हो गया, सारा मेंबर का ऑक्सीजन ख़त्म हो गया। तो उसके बाद तो चलना बहुत दिक्कत हो गया, तो क्या करें। तो उसके बाद भाषण सर बोल रहे देवाशीष दा को पेम्बा तुम देवाशीष दा को लेके जाओ, मैं यहीं रहेगा। देवाशीष दा बोल रहा है कि भाषण सर को लेके जाओ, हम यहीं रहेगा। तो एक आदमी ने तो दो साथ हमारा साथ एक पसंग था, वो थोड़ा क्योंकि उसका एक्सपीरियंस थोड़ा कम था, तो मैं अकेला क्या करूं। तो दो आदमी का तो एक साथ तो लेके जाना ही पाएगा। इतना 8000 वो भी 8000 मीटर लगभग वहाँ पर था। तो वो भी इतना टेक्निकल जगह में। तो बाद में भाषा ने बोला तो देवाशीष दा का लेके जाओ। हम देवाशीष दा का एक 3-4 मीटर का रोप, एक रोप काटा। तो देवाशीष दा एंगर में लगाया, मेरा एंगर में सेफ्टी में लगाया। सेफ्टी करके देवाशीष दा का मैं आ गया, फिर देवाशीष दा का खींच के लेके आया। फिर मैं थोड़ा नीचे आ गया, फिर देवाशीष दा का लेके आया। ऐसे कर करके तो बसंत दादा ऊपर ही है, वो पसंग का साथ पसंग भी वहीं छोड़ दिया है। तो सुबह हो गया, थोड़ा सुबह हो गया, मैंने ओगट ओगे किया कैंप 2 में। क्योंकि कैंप 3 में जो मलाई हम लोग शामिल में निकला, तीनों निकला था। तो मलाई थोड़ा हम लोग आगे आगे चला गया, तो मलाई दा थोड़ा पीछे पड़ गया। तो और तीनों जाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैंने एक शेरपा को उधर से जो हमारा जो दावा अंशु करके जो छंदा का साथ येलुंगांग में गुजर गया था, तो उसका दावा को छोड़ दिया मैंने। मनाईदा का आके तो यहाँ से वापस ले जाना मनाईदा का, क्योंकि सब मेंबर ऊपर जाएगा तो और मुश्किल हो जाएगा। तो कोई मेंबर होता तो वो ज़बरदस्ती करता आ जाता था। लेकिन मलाई जी जो हमने बोला वो बात सुना, तो हम और मलाई जी वहाँ से ही वापस कैंप में गया था। तो वहाँ पर दावोंगचुक था। तो मैंने क्या बोला दावोंगचुक को ऑकटो किया, तुम वहाँ पर थोड़ा बचाओला ऑक्सीजन है लेके आ जाओ। तो ऊपर जाके बसंत दादा का लेके आना है। आज के लिए जो सामान लेना है। तो उसके बाद हम लोग वहाँ से दावोंगचुक कैंप 3 से गया। उस समय को नीचे जो बसंत सर छोड़ा है वहाँ जाके, तो हमने तो सोचा ये 100 में 99% तो अभी बसंत सर तो नहीं है, वापस नहीं आएगा। तो कैसे आएगा, क्योंकि वो तो आ नहीं पा रहा था। तो मैंने बोला दावोंगचुक को जितना भी होगा, जैसे भी होगा लेके आने को कोशिश करना है। तो बाद में वहाँ से ओकटोके दावोंगचुक पहुँच गया। ओकटोके में बात किया, देवाशीष ने भी बोला, हमने भी बोला, घर में बाप बीवी बच्चा है, आने को कोशिश करो, कोशिश नहीं करने से नहीं होगा, कोशिश करो। तब उसके बाद तो कोई कांटेक्ट नहीं था। हम कांटेक्ट इतना भी कांटेक्ट कर रहे हैं, कांटेक्ट नहीं हो रहा है। तो हम सोचा है दोनों गिर गया, क्योंकि बसंत तो आ नहीं पाएगा। तो दावोंगचुक ने पीठ में उठा के लेके आने की कोशिश किया होगा। तो इतना आदमी इतना माउंटेन में 8000 में ऊपर कोई पीठ में तो उठा नहीं पाएगा। तो दोनों चला गया। हम इतना टेंशन में था, हर रोज़ हम कैंपों से पूरा ओकटोके में कांटेक्ट कर रहा है, कांटेक्ट नहीं हो रहा है। तो हम इतना टेंशन में था। तो शाम को या 4-5 बजे तो दावोंगचुक ने बसंत सर का लेके कैंप में पहुँच गया। तो हम लोग इतना खुश हो गया, खुश होकर तो दावंगी लेके चला है। हाँ, दावोंगचुक उसका लेके आ गया। तो कैंप में लेके आया। उसके बाद जूता सूता खोल के उसके बाद वहाँ पर
सूप वगैरह पिलाया, चाय वगैरह पिला के हम लोग वो रात वही कैंपों में बैठ गया था। तो दूसरे दिन हम लोग वहाँ से कैंप 3 आ गया, तो भाषण साहब तो चल नहीं पा रहा था। तो फिर हम लोग वहाँ से लेके आया पूरा रस्सी में। तो हम लोग कैंप 3 पहुँच गया। कैंप 3 से तो कोई उपाय नहीं था। तो मैंने सोचा, तो उसके बाद तो पूरा मेटेस का अंदर पूरा बांध के जो रेस्क्यू करते हैं उसी हिसाब से रस्सी में रेस्क्यू करके लेके आना पड़े। तो उसी टाइम हम लोग पूरा बांध के, तो बांध सब ख़त्म हुआ था। अभी लेके आने का, नीचे लेके आने का उसमें था। तो उसी टाइम स्पेनिश का जो एक्चुअली स्पेनिश टीम का जो रेस्क्यू जो हेली था, वो हेली ने पूरा रस्सी सर के आ गया। तो हम लोग भी उसका हाथ किया, तो वो रस्सी दे दिया हम लोग को। देने के बाद हम लोग वो रस्सी में हैंग करके बस सर का नीचे भेज दिया हेलीकॉप्टर से। हाँ, हेलीकॉप्टर से। तो ये एक्चुअली क्या है, बहुत आदमी बोलते हैं जो आदमी अच्छा आदमी है उसका भगवान ने भी बचा लेता है। बचाएगा बोला है। ये मैंने उसी माउंटेन में देखा, पक्का सच ये। क्योंकि कोई आदमी 4-5 दिन हेली को बोलेगा, हेली नहीं आएगा, मौसम ख़राब हो जाएगा, नहीं आएगा, बाद में ऐसे भी आदमी मरना पड़ता है। तो बसंत सर का अचानक हेली आके हेली से उठा के लेके गया। जो आदमी सही आदमी है वो भगवान देखता है बोला है कि हम उसी टाइम सोचा कि हाँ भगवान, आदमी बोलते, कोई आदमी बोलते भगवान नहीं है बोलते, लेकिन भगवान है। ये मेरा थोड़ा वो हो गया, विश्वास हो गया। देखिए पिम्बा जी, आप इतना ऊंचा चोटी पर चढ़ा है, उसमें एवरेस्ट में 7 दफे चढ़ा है। आप भी भगवान के ऊपर भरोसा रखता है, ये हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। जो आप ऐसा आपको घबराहट नहीं आया जो भगवान कुछ नहीं है, हम अपना ताकत से उठा है, ये चीज़ सबको ही नहीं बोलता है। आप ये सब बोला है, लेकिन तब भी आपको हम 2 चीज़ पूछेंगे। एक, आपको बचपन क्या दार्जिलिंग में ही ना, एक्चुअली मेरा पहले जन्म तो मेरा नेपाल में हुआ। नेपाल? हाँ, नेपाल में मेरा जन्म हुआ। एक्चुअली मेरा अभी जो मेरा एजुकेशन नहीं है, मैं एक्चुअली ज़्यादा जहाँ पे कल उधर एक क्लब में भी मेरा ये बोलने का वो किया है, लेकिन मैं बोल नहीं सकता क्योंकि मेरा नेपाल में हुआ तो मेरा बहुत पहाड़ी इलाका में मेरा जन्म हुआ है। तो इसीलिए मैंने कोई स्कूल नहीं है, मैं स्कूल नहीं किया। स्कूल का बारे में नहीं पूछता। उसका बाद आप दार्जिलिंग में कब से है? तो मैं दार्जिलिंग में मैं 86 से आया। मैं दार्जिलिंग 80 से, तो बहुत दूर है। आपको और एक चीज़ हम पूछेगा। चुप कर। हमने जो देखा है, तेजिंग का लड़का जो जमलिंग है, वो जब 2007 में आप लोग का साथ एवरेस्ट का चोटी पर चढ़ा है। जमलिंग का लड़का, जमलिंग तेजिंग है, वो तेजिंग का लड़का 96 में, हाँ? 96 में वो एवरेस्ट में चढ़ा है। हाँ, एवरेस्ट। उसको हम पढ़ा है, उसको लाइफ में बोलता है। उसको जब पूछा रहा जी आप आओ एवरेस्ट में जाएंगे, बोलो काहे नहीं जाएगा, इज़ वेरी डेंजरस टू क्लाइंब एवरेस्ट। तो आप लोग जानते हैं, तब भी आप लोग 7 दफे एवरेस्ट में चढ़ा है। तो उसका बाद में आप लोग का डर नहीं लगा है? जो वो जैसा बोला है, हम एक दफ़े चढ़ा है तो अब नहीं चढ़ेगा, बहुत डेंजरस है, नहीं जाएगा। तो उसका बाद में आप लोग तो जमलिंग का साथ एक साथ में एक्सपीडिशन किया, तो आप लोग को कुछ डर नहीं लगा है उस टाइम? वो जो बोला है डर मतलब क्या होता है कि डर तो एवरेस्ट या जो भी माउंटेन में छोटा या बड़ा, सब माउंटेन डेंजर ही है। सब माउंटेन का डरना चाहिए, क्योंकि हमारा सिर में पत्थर तो एवरेस्ट को हो या दूसरा माउंटेन को इतना पत्थर लगने से भी वो डेड होगा, इतना आइस लगने से भी। वो एवरेस्ट का आइस भी एक ही है, दूसरा माउंटेन का आइस भी एक ही है। वो तो बर्फ़ है, आइस है। तो एक्चुअली डेंजर तो एवरेस्ट के सारा माउंटेन सारा माउंटेन डेंजर ही है। तो डर तो सारी माउंटेन को डर करना पड़ता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी माउंटेन में हम लोग जाने से पहले, जो हम लोग BCM में पहुंच गया, BCM में पहुंचने का क्लाइंबिंग करने से पहले हम लोग जो भी एक पूजा करते हैं। क्योंकि वो एरिया का जो भी एक बोलते हैं, बहुत पहले से ये सोचो पहले पुरखा से
होके आया कि वहाँ पर जो भी देवी देवता है उसे पूजा करना उसको चाहिए, पूजा करना चाहिए। उसके बाद यात्रा करना हाँ, चाहिए। उसका मान के तो हम लोग वैसे ये करने से, लेकिन वो तो कहीं वो हो गया तो वो पूजा से तो कुछ नहीं हो, लेकिन अपना आदमी का एक विश्वास है कि ठीक है, पूजा तो हम लोग मेंटली करते हैं, मेंटल हाँ, सेटिस्फेक्शन। चोटी का ऊपर भी पूजा करते हैं। हाँ, पूजा। लेकिन वो बात नहीं, जो जैमलिंग साहब जो है, जैमलिंग साहब ने आके बोल दिया इट इज़ वेरी डेंजरस टू क्लाइंब एवरेस्ट सेकेंड टाइम। वही बात हम पूछा, वो अब नहीं गया एवरेस्ट में, वो पहला दफा ही गया, उन्हें और एवरेस्ट चोटी पर नहीं गया। तो उसका बाद में भी 100 लोग एवरेस्ट पे चढ़ता है, 2 दफ़े, 3 दफ़े, 4 दफ़े। तो वही बात बोलता है, तो जैमलिंग को बात को थोड़ा ख्याल रख के ही जाता है वो लोग, जो इतना डेंजर हो, जो आप बोले हैं, कोई भी पत्थर आने सकता है, कोई बर्फ़ का टुकड़ा आने सकता है, वही सब ध्यान रख के जाता है। आप जितना दिन माउंटेनिंग करता है उसमें जितना आदमी का इंज्योर्ड हुआ लेकिन मौत हुआ, उसका आपको बारे में क्या है जी, उसका अपना गलती से, अपना गलत से हुआ ना, कोई ऐसा सडनली जो वेदर ख़राब हो गया, नहीं तो स्लिप कर गया, नहीं तो हो गया, ऐसा ये सब कैसे हुआ? अपना गलत से होता है, जो क्लाइंबर वो अपना गलत से हो गया। मान लीजिए हम 2-4, तो अभी लास्ट टाइम एवरेस्ट में 2 आदमी, 4 आदमी, उसका बाद में इधर ये कंचनजंगा में ये जो और पहले जो गया, वो लोग को जो गुजर गया, वो लोग कोई मिसिंग हुआ, कोई वापस आया कॉफिन में, आपका क्या ये है ओपिनियन है? वो लोग क्या अपना गलत से हुआ, और दूसरा का नेचर का क्या बोलेगा, नेचर बिट्रे किया, नेचर वो ख़राब हो गया, वेदर बहुत ख़राब हो गया, वही लिए वो लोग हो गया। इसका आपका क्या व्यू है? उतना ये तो क्या है कि जो एवरेस्ट में जो कोई, तो हम जो जमलिंग सर ने बोला है, वो एक्चुअली डेंजर तो एवरेस्ट की डेंजर है, सारा माउंटेन डेंजर चलो है। वो तो आप बोले हैं। तो एक्चुअली क्या है, हम लोग का हर साल ये माउंटेनिंग करने का एक है, तो एक्चुअली हम लोग को सब लोग रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि हम एक बार एवरेस्ट चढ़ने से फिर दूसरा बात भी बोलेगा कि सब आपको साथ ही जाएगा, आप जाना ही पड़ेगा। तो एक तो रिक्वेस्ट से हम लोग जाता है, तो एक तो क्या हम माउंटेन छोड़ नहीं सकते कि ये माउंटेन से ही माउंटेन करके हम ये लेवल में पहुंच गया, तो हम माउंटेन छोड़ नहीं सकते, इसलिए सब लोग रिक्वेस्ट करते हैं, इसलिए हम जाते हैं, माउंटेन करते हैं। तो ये जो भी घटना हुआ है, जो ये एक्चुअली बाकी टाइम में पता नहीं, जो ये 2013 में जो घटना हुआ, जो एवरेस्ट में जितना भी शेरपा लोग 17 आदमी गुजर गया था, कुंभ ग्लेशियर में। जो खुम्बू ग्लेशियर में, तो वो कोई शेरपा को गलत से नहीं था, तो शेरपा को गलत से नहीं था, वो एक्चुअली ऊपर से एक पूरा पहाड़ टूट के आया, तो ऊपर चलते चलते जितना भी आदमी था उसमें हो गया। उसका जो हम बोला, उसमें कोई आदमी बच गया, तो वो तो जो हम बोला ना, एक भगवान ना होता है, भगवान ने बचा लिया। उसका टाइम नहीं हुआ था, हाँ, टाइम नहीं हुआ था, उसका ऊपर जाने का टाइम नहीं टाइम था, नहीं, भगवान बुलाया नहीं। हाँ, भगवान नहीं। तो उसके बाद 2050 में जो भूकंप में बिस्के में इतना आदमी मर गया, तो एक्चुअली बिस्के में तो 1000 से ज़्यादा आदमी था मेरे ख्याल में, तो उसमें 21-22 आदमी मर गया, तो बाकी आदमी बच गया, तो वो भी भगवान ने बचा लिया, क्योंकि सब आदमी का वो होता तो सब आदमी मर जाता, समझो भगवान था, भगवान ने बचा लिया। तो वही समझो। आपको बात से हम लोग का ऐसा ही मालूम होता है, जो चोटी पर चढ़ता है भगवान ने उसको चढ़ा दिया, जो चोटी पर चढ़ने नहीं सकता उसको भगवान ने मना कर दिया, जो नहीं आता है, जो गुजर जाता है उसको भगवान ने नहीं बचा है। तो असली चीज़ है भगवान, हम लोग का सब कुछ है। हाँ, भगवान महेंद्र भगवान ही ये बुल्लू जी को भी जो है, मैं हम लोग का है, जो भगवान छोड़ करके हम लोग को ये सब चीज़ नहीं होने सकता है। जो आपको घमंड देगा, जो हम यही करता है, हम वो करता है, हम नहीं है, सब ऊपर वाला का, हाँ, सब ऊपर वाला का ये है, दुआ है। जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र में प्रक्रिया है, ये भगवान को मानने का। एक चीज आपको पूछने चाहता ऐसा बात है, जैसा हिलारी साहब ने, सर एडमंड हिलारी, पहला जो क्लाइंब किया एवरेस्ट, हिलारी साहब तेंजिंग में, वो जब
एवरेस्ट चोटी के ऊपर पैर रखा, वो बोला है रेडियो मैसेज में, तब तो ये सब टीवी नहीं रहा, रेडियो मैसेज में वो बोला आई हैव नॉक द बास्टर्ड, उसको एवरेस्ट को गाली दिया। उसका बाद में पीछे जब आदमी लोग उसको पूछा है जे काहे ऐसा किया, बोला हमको गलती हुआ, लेकिन हम इतना एक्साइटेड हुआ, वो हम चढ़ने का पहले इतना आदमी लोग को एवरेस्ट खा लिया, उसका गुस्सा से हम उसको ऊपर चढ़ के ऐसा बोला है। तो उसका बाद में सर एडमंड हिलारी क्या किया, शेरपा विलेज में शेरपा लोग को लिए उसका सारा जीवन का जो रोजगार है सब वो शेरपा विलेज का लिए वो दे दिया। मतलब आपका माफी उसका भी रियलाइजेशन होगा जो भगवान है, जो भगवान को बोला है, पैर से जो मारा है तो पीछे से बोला नहीं भगवान है। वही लिए शेरपा लोग भगवान को विश्वास करता है। वो सर एडमंड हिलारी को वो शेरपा लोग को भगवान मानता है। ऐसा आप जानता है कि नहीं जानता है, हम लोग का यही जानकारी है। उन्हें भगवान को पहले विश्वास नहीं किया, उन्हें एवरेस्ट चोटी पर चढ़ के उसको गाली दिया। उसका बाद जब रियलाइजेशन हुआ तो वो बोलता है कि एवरेस्ट चोटी नहीं, शेरपा लोग हमारे पास गॉड है, वो लोग का लिए एवरेस्ट हमारे पास गॉड है। पहले शेरपा लोग गॉड है, उसका बाद वो गॉड है। ये आप लोग का जानकारी होगा कि नहीं हुआ हम नहीं जानते, लेकिन हम जो पढ़ा है उसका लाइफ हिस्ट्री में ऐसा उसका बोला है। वही आपको साथ एक बात हमारा बहुत अच्छा लगा, जो भगवान जिसको रखता है वो रहेगा, जिसको नहीं रखता वो नहीं रहेगा। मेरे एक प्रश्न है, आप तो दो साइड से जाता है एवरेस्ट तो, साउथ कोल और नॉर्थ कोल, तो आपका हिसाब से आप साउथ कोल नॉर्थ कोल दोनों ही किया है, आपके हिसाब से सबसे कठिनाई किस में है? कठिनाई तो एक्चुअली एवरेस्ट तो कठिनाई है, नहीं दोनों के अंदर में कौन तो कठिन है? एक्चुअली क्या है, नॉर्थ से हवा ज़्यादा चलता है लेकिन डेंजर कम है। अच्छा, वहाँ पर नॉर्थ से कोई खुम्बू आइसफॉल जैसे लेडर में जाना नहीं पड़ता है, कहीं रॉकफॉल नहीं होगा या एवलास नहीं आएगा नॉर्थ से, लेकिन हवा ज़्यादा है वही मुश्किल है। साउथ से हवा कम है, ठंडा कम होगा, लेकिन खुम्बू आइसफॉल का एक डेंजर है। कभी कभी कैंप 3 में भी आठों से फेस से कोई एवलास आ जाता है, कोई रॉकफॉल हो जाता है, तो वो दोनों में थोड़ा मतलब एक ही है, क्योंकि कोई आदमी नॉर्थ से इजी बोलता है लेकिन रिस्की नॉर्थ से नहीं है। साउथ से रिस्की है, हवा कम है, लेकिन नॉर्थ से रिस्की बहुत कम है, हवा ज़्यादा है। उसमें फर्स्ट बाइट होने का चांस नॉर्थ से थोड़ा ज़्यादा है, साउथ से थोड़ा कम है। लेकिन अभी क्या हो गया, एवरेस्ट में बहुत पहले एक बार एवरेस्ट क्लाइंबिंग किया एक कोई आदमी किया, बहुत उसका इज्जत मिलता था, ईमान मिलता था। अभी बहुत बार जो भी आदमी का पहले का जैसे इज्जत नहीं मिलता है। लेकिन क्या होता है एवरेस्ट में, अभी बहुत आदमी कोई बोलता है कि एवरेस्ट में तो अभी पूरा रोड बन गया है, ऐसे भी बात करते हैं। जो आदमी एवरेस्ट में नहीं गया, जो आदमी का माउंटेन पता नहीं है, जो माउंटेनिंग पता नहीं है, तो उन लोग बोलता है कि अभी पूरा गली बन गया है। मान लीजिए एक आदमी का पैसा बहुत है, एक आदमी का चेहरा बहुत अच्छा है, एक आदमी का दिल बहुत अच्छा है, लेकिन एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए उसका जो दम होगा, जो लंग होगा, उसको भी अच्छा रहने पड़ेगा, तब तो जाने पड़ेगा। जिसका पैसा ज़्यादा है, चेहरा अच्छा है, उसको तो लंग अच्छा नहीं हो सकता है। वो गया तो थोड़ा, तो उसका लिए तो उसका कुछ करने पड़ता है, तब तो जा नहीं सकता है। ऐसा नहीं जे हम पेम्बा जी को 10 लाख रुपया दे देता है, 20 लाख रुपया देता है, हम चढ़ जाता है। उसका तो अपना शरीर का ऊपर जाने पड़ता है। ये तो नहीं है जो पेम्बा जी कंधा पर आदमी लोग अभी जो बोलता है सारा कलकत्ता में जो तो शेरपा लोग ले जाता है, हाँ वो लोग गाइड होता है, वो लोग टेक्निकली सपोर्ट देता है, लेकिन फिजिकल सपोर्ट वो लोग का देखने का तो नहीं है। फिजिकल सपोर्ट अपना अपना को बनाने पड़ता है। ये बात सही है कि नहीं है? जो कोई दुबला पतला आदमी है, जो सिक आदमी है, उसको आप चढ़ा नहीं सकता है कि नहीं सकता? देखिए सर, इसमें ना एक बात हम बोले, इसका उधर ये आ गया, जो पहले कौन बोला तुम वहाँ जाके गाली दी एवरेस्ट को,
क्या नाम दिया उनका, हिलारी साहब उनने एवरेस्ट चोटी को गाली दिया, सर्वा लोगों को भगवान माना। वो किस लिए वो सर्वा लोग उसका सपोर्ट करके ले ना, उसने ठीक बोला, सर्वा लोग जो भगवान है उसकी तरफ से एवरेस्ट तो भगवान ही है। हाँ भगवान ही है, भगवान वही नहीं बोलता है, वही नहीं बोलता वो लोग भगवान का भी ले जाता है, लेकिन वो जो बहुत आदमी ऐसा है उसका ताकत नहीं होता है, ताकत नहीं होता, लोग जोर से जाता है, वो तो शेरपा लोग नहीं जानता है, वो जब जाता है तब उसको देखता है, ताकत नहीं होता है तो ताकत नहीं होता है वो लोग को, तो जाता है अपना जोर से जाता है। शेरपा लोग हम सुना है, शेरपा लोग भी जोर करते नहीं हम जाएगा, ऐसा सुना है, नहीं हम जाएगा हम सकेगा, शेरपा लोग उसको मना करता है मत जाओ। जैसा आप बोला, बसंत साहब ने बोला है ये नहीं, आप तीनों आदमी गुजर जाता रहा उधर में, जब ऐसा करता रहा धौलागिरी में, तो वैसा आप लोग बोलने से भी जब कोई नहीं सुनेगा, नहीं हम जाएगा, वो कुछ नहीं हम चले जाएगा, आप छोड़ दीजिए, तो ऐसा तो गलत तो उसका ही होता है, वो तो शेरपा लोग का तो गलत नहीं है। रिसेंटली हम लोग सुनता है वो शेरपा लोग का लिए उसका दोषी वो तो नहीं है, तो आप क्या बोलते हैं वो सही है कि नहीं? एक्चुअली ये क्या कि एवरेस्ट जो भी माउंटेन क्लाइंबिंग करने के लिए पैसा से नहीं होता है। हाँ। पैसा या अपना फिजिकल फिटनेस से जरूर है, जरूर होना चाहिए। वो बिना छोड़ के आप तो नहीं क्लाइंब कर सकते। एक बात ये भी है कि जिसका जो मेंबर का साथ जो पैसा है उसका साथ एवरेज आने के लिए 40 लाख 50 लाख है, लेकिन वो 40-50 लाख खर्चा करके उसको समिट क्यों नहीं होता है? बेस कम भी नहीं जान सकते। एक है फिजिकल फिट नहीं होने के कारण, दूसरा है उसका गाइडिंग ठीक नहीं मिलने के कारण। क्योंकि कोई आदमी पैसा बहुत है लेकिन उसका फिजिकल भी फिट है, लेकिन उसका गाइडिंग ठीक नहीं मिला, तो इसमें समिट भी नहीं होता है, उसका डेंजर भी है, क्योंकि उसका शरीर जो उसमें क्लाइंबिंग में डेंजर भी है, क्योंकि उसका गाइडिंग ठीक से नहीं मिलने से वो आदमी कुछ भी हो सकता है। तो जो कोई आदमी अपना एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस आदमी क्या है, गाइडिंग ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो तो अपना खुद को भी तो पता चलता है। तो जो मैं ड्राइवर करता है तो गाड़ी चलाता है, तो मेरा गाड़ी ठीक है कि नहीं, चलाते ही तो पता चलेगा ना, क्योंकि गाड़ी ठीक से जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो जो क्लाइंबर जो अपना ठीक क्लाइंबिंग करने के लिए जाएगा, तो वो जो शेरपा सही मेरे लिए सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो तो पता चल जाएगा। तो कोई आदमी क्या करते हैं, अपना ठीक गाइडिंग ठीक नहीं मिलेगा तो वो अपने आप वो बंद करके माउंटेन छोड़ के वापस आएगा, नेक्स्ट ईयर फिर ट्राई करेगा। तो मैंने जो पैसा से कभी भी, लेकिन पैसा से होता है जो मैं थोड़ा कुछ हो गया या मेरा ऑक्सीजन का ज़रूर है, कोई मेंबर 6 बोतल ऑक्सीजन में एवरेस्ट क्लाइंबिंग करता है, तो सोचो देवुदा के लिए 10 बोतल ऑक्सीजन चाहिए, तो वो है पैसा के लिए होगा। उसके लिए क्या होता है कि एक क्लाइंबिंग शेरपा लेने का बजाय 2 क्लाइंबिंग शेरपा लेकर क्लाइंबिंग करता है, लेकिन वो भी तो क्लाइंबिंग शेरपा सही होना चाहिए। उसको कहाँ तक जा पाएगा या क्या कर पाएगा, उसको कैसे बचा के लेके आने, कैसे ले जाने, वो गाइडिंग अच्छा होना चाहिए, तब उसके लिए पैसा। नहीं तो अपने फिजिकल फिट नहीं होगा तो पैसा से कुछ नहीं होगा। उसका 40 लाख पे करो या 50 लाख पे करो, एवरेस्ट को फिजिकल फिटनेस इज मस्ट। फिजिकल फिटनेस एकदम जरूरी जी है। आपको लास्ट एक हम लोग पूछने मांगता है, जैसा आपको क्रेडिट से ही होगा, हमारा क्लब का मौलाना मुखर्जी को आप एवरेस्ट पर चोटी पर चढ़ा दिया, ये हमारा क्लब का एक माइलस्टोन हो गया। हावड़ा डिस्ट्रिक्ट माउंटेनियर्स एंड टेकर्स एसोसिएशन, उसको 37 साल, इसका जन्म से 37 साल हुआ। ये 37 साल का भीतर में मलय का जो क्लाइंब के एवरेस्ट, ये हम लोग का क्लब का नाम बहुत दूर बढ़ा दिया। तो हम लोग जानता है मलय का जो सक्सेस हुआ, वो सक्सेस का मलय का तो है ही है, लेकिन पेम्बा शेरपा जो गॉड का माफी उसको हेल्प किया, उसका मलय का सक्सेस हुआ। आपको और एक रिक्वेस्ट करना चाहता है, हम लोग का और एक मेंबर कुंतर खाना, वो 2017 में एवरेस्ट में जाता है। आप उसका साथ भगवान का माफ़ी रहिए, उसको हेल्प कीजिए, छोटी बच्चों को।
तो ज़रूर, क्योंकि हम तो जो आदमी जिसका प्यार करता है तो वो तो प्यार तो देगा ही देगा। एक्चुअली उसका जो एक समझो हम एक बच्चा ने मेरा का प्यार कर रहा है तो उसको मैं तो लात तो नहीं मारेगा ना, प्यार तो देगा ही देगा। क्योंकि जो हम लोग को आप लोग जो इतना हावड़ा माउंटेन क्लब हम लोग को इतना इज्जत देता है, हम लोग को इतना करता है, तो हम ये इसको तो हम सही तक करेगा ही करेगा। इसमें कोई हम लोग सोचो हम ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे। आप करेगा, लेकिन ये बोलने का हमारा ड्यूटी है आपको। आप करेगा तो जरूर। आप कामेट में थे, नंदाकुंटी में, अभी नून में, कून में सही आप नहीं थे, हाँ, कून में नहीं थे। तो ये सब तो बड़ा बड़ा पिक आप लोग को हो गया। अब ठीक है, तो आपको हमारा तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद फॉर दिस इंटरव्यू। आप ठीक है, मेरा तरफ से भी बहुत धन्यवाद, आपको बहुत शुक्र करे। और आपका फैमिली के लिए मेरा दुआ मांगता है, भगवान का पास भी मानते हैं कि आपका फैमिली भी सुखी रहे। आप दिन के दिन ऐसे आदमी को, नए नए आदमी को आप पूछाइए, रोशन कीजिए उसका नाम, आपका साथ उसका आप भगवान जैसे रखे, उसको गाइड करके ठीक ठाक करके आगामी दिन में अपना जितना पीढ़ी आएंगे, नया नया जितना लड़का आएंगे, लड़की आएंगे, जो एवरेस्ट में बा जो इस क्षेत्र में इतना माने दुर्जगपूर्ण हो, बहुत कठिनाई करके उसको सक्सेस मिलता है। तो आप लोग के साथ मदद मिलके जितना सिपा भाई है, जो लोग सब मदद करके जाते हैं, मैं सबको मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं आभारी है कि आप के जैसे महान आदमी को मेरा इंटरव्यू लेने का मौका मिला है। मैं बहुत खुश है। थैंक यू, मेनी थैंक्स।